audio jungle. आज पश्चिम बर्धमान जिला सीएमओएच दफ्तर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पश्चिम बर्धमान जिला के सीएमओएच सहित स्वास्थ्य विभाग के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। यहां फलेरिया नामक बीमारी पर विस्तार से चर्चा की गई। सीएमओएच मोहम्मद यूनिस ने बताया कि 14 मार्च से 24 मार्च तक पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण दफ्तर की तरफ से एक अभियान चलाया जाएगा। इसके जरिए पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य कर्मी लोगों के घर जाएंगे और उनको फलेरिया की दवा देंगे। उन्होंने कहा कि फलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसका सही समय पर अगर इलाज किया जा सके तो ये संपूर्ण रूप से ठीक हो सकती है। उन्होंने आज के कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों और अधिकारियों को सलाह दी कि वे लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करें और उनको समय रहते फलेरिया की दवा लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाएं, 2 साल से छोटे बच्चे और गंभीर रूप से बीमार लोगों के अलावा सभी को ये दवा दी जा सकती है। इस मौके पर सीएमओ मोहम्मद यूनुस, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अनुराधा देव सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यह अभियान पश्चिम बर्धमान सहित 5 जिलों में चलेगा। आसनसोल से बपी बैनर्जी की खास रिपोर्ट। যেটাতে গ্রোথ সৃষ্টি হয় এতে হয়তো প্রাণহানি ঘটে না, কিন্তু জীবনের যে সুস্থ জীবন সেটা কিন্তু আর ফিরে পাওয়া যায় না। একবার যদি রোগটা হয়ে যায়, গ্রোথ একটা পা মোটা হয়ে যায়, ওটা জানতে পা বা হাত হতে পারে, ইন্টার হতে পারে, সেটা যদি হাইড্রোসিল হয় এবং সেটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আর সারে না। এটা প্রিভেনশনটাই সব থেকে জরুরি। সেই জন্যে আমাদের অন্যান্য সব জেলার মতো আমাদের জেলাটাও এন্ডেমিক জেলা ছিল। এই প্রোগ্রাম যেটা মাস ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফাইলেরিয়া প্রোগ্রাম বা ফাইলেরিয়া দূরীকরণের জন্য, সেটা কিন্তু শুরু হয়েছে বেশ কিছু বছর আগে, 2004 সাল থেকে। অন্যান্য জেলাতে এটা এই প্রোগ্রামে পাস করে গেছে বলতে পারেন। মানে আমরা 5টা জেলা বাদ দিয়ে, এই ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন 5টা জেলা বাদ দিয়ে, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ, এই 5টা জেলা বাদ দিয়ে বাকি সবাই এই প্রোগ্রামটাতে পাস করে গেছে। সেই জন্য তাদের আর এই প্রোগ্রামটা করতে হচ্ছে না। আমাদের এখানে এই টেস্ট পরীক্ষা এই খাওয়ানোর পরে, মাস ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রোগ্রামটার পরে আবার একটা হবে নাইট ব্লাড সার্ভে। ফাইলেরিয়ার যে প্যারাসাইট সেইগুলো রাত্রিবেলায় আমাদের রক্তের মধ্যে বেরিয়ে আসে এবং সেখান থেকে মশা খেয়ে দিয়ে কামড়ে আরেকজনকে কামড়ালে এই রোগটা এভাবে ছড়ায়। শুধু রাত্রিবেলাতে ওরা ব্লাডে বেড়াতে বেরোয়, বাকি সময় ওরা লিভারের মধ্যে থাকে। নাইট ব্লাড সার্ভে করে আমাদের কিছুদিন আগে দেখা হয়েছে যে আমাদের জেলায় এনডিভিসি আছে, এখনও ট্রান্সমিশন চলছে। এই 5টা জেলার মধ্যে ট্রান্সমিশন চলছে। এই 5টা জেলায় শুধু এবারে মাস ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রোগ্রামটা করবে। তার মানে আমরা যদি এই প্রোগ্রামটা সাকসেসফুলি 100% লোকে যদি দিতে না পারি, তাহলে আমাদের এই প্রোগ্রামটা করেই যেতে হবে। যারা পাস করে গেছে, একসময় একই জেলা ছিল পূর্ব বর্ধমানও কিন্তু এবারে মাস ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করছে না, ওদের ওখানে অ্যাক্টিভ ট্রান্সমিশন দেখা যায়নি। তো সেই জন্য আমাদের এবারে পাস করাটা খুব জরুরি, সবাইকে খাওয়াতেই হবে। আমরা কেন ফেল করেছি সেটা তার আগে জানা দরকার। এর আগে যেটা হচ্ছিল, প্রতিবার প্রোগ্রামটা যেটা হয়, বাড়ি বাড়িতে গিয়ে আমাদের স্টাফরা ওষুধ দিয়ে আসে। মানে তার বাড়িতে কজন আছে, 1 বছরের বাচ্চার জন্য ডোজ একটা, এটা এই বাচ্চা, 1 বছরের উপরে, 2 বছরের উপরে যারা আছে, 2 থেকে 6 বছরের আলাদা ডোজ, 6 থেকে 14, 6 থেকে 15 আলাদা ডোজ, 15 উপরে ফুল ডোজ। তো এরকম ভাগ করে করে সবাই মুড়িয়ে দিয়ে আসতো। সেটা কনজিউম করতো না, খাচ্ছে না। মানুষ না খেলে তো হবে না, ওষুধটা বাড়িতে থাকলে তো কাজ হবে না, এবং সেটার জন্যই আমরা ফেল করেছি। সেই জন্য এবার যেটা হচ্ছে, বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া না, ড্রাগ ডিস্ট্রিবিউশন না, ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ওর সামনেই খেতে হবে। এইটা যদি আমরা সাকসেসফুলি করতে পারি, 2 বছরের নিচের বাচ্চা এবং প্রেগনেন্ট ওমেন, গুরুতর অসুস্থ, এই কটা বাদ দিয়ে বাকি সবাই যদি খেতে পারে, সবাই যদি ওষুধটা খায়, তাহলে কিন্তু এই রোগটা দূরীকরণ করা যাবে। সেটাই আমাদের সবার কাছে অনুরোধ যে আপনারা এই বার্তাটা সবার কাছে পৌঁছে দেন, যেন সবাই ভয় না পেয়ে এই ওষুধটা সবাই খায়, যার যেরকম ডোজ সেই ডোজ অনুযায়ী খায়। আর একটা হচ্ছে যে ছেলের মারাত্মক কিছু সাইড এফেক্ট হয় না, এই বার্তাটাও পৌঁছে দিতে হবে। এতে কোনো গুরুতর সাইড এফেক্ট কিছু নেই, একটু বমি ভাব, একটু
ঘুম ঘুম ভাব আসতেও পারে, তার বেশি কিছু নয়। এবং ওষুধটা খাবার খেতে হবে, খালি পেটে খেলে এই বমি ভাবটা বেশি হতে পারে। আর যার মধ্যে এরকম প্যারাসাইট আছে তাই এই কিছু অ্যালার্জিক সিমটম দেখা দিতে পারে। এবং যদি ওষুধ খেয়ে কারো কিছু অসুবিধে হয়, যে ওষুধ খাওয়াচ্ছে তার কাছে একটা ওইগুলোর জন্য ওষুধ দেয়, সাইড এফেক্টের জন্য ওষুধ দেওয়া যায়, যে সম্ভাব্য সাইড এফেক্ট তার জন্য ওষুধগুলো সঙ্গে একটা কিট বাক্স দেওয়া আছে। এবং যদি কারো অসুবিধে হয় সে সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকেই ওষুধ দিতে পারে। অর্থাৎ ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, নির্ভয়ে ওষুধ খেতে পারে যাতে আমরা রোগটা নির্মূল করতে পারি, দূরীকরণ করতে পারি। ধন্যবাদ। फाइलेरिया को निर्मूल करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की तरफ से एक विशेष अभियान छेड़ा गया है। आइए हम पश्चिम बर्धमान ज़िले के सीएमओ स्तर से जानते हैं कि इस अभियान की विस्तृत जानकारी लेते हैं। सर, इस अभियान के बारे में ज़रा हमें दर्शकों को विस्तार में बताइए। ये जो है नेशनल फाइलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम, इसका प्रोग्राम के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा। 2 साल के नीचे के बच्चा और प्रेग्नेंट वोमेन और जो सीरियसली गुरुतर इल है उन लोग को छोड़ के बाकी सारे आदमी को सबको ये ड्रग देना है। इसका उम्र के जैसा डोज है, अलग अलग डोज है। 2 से 6 एक टैबलेट, 6 से 14 DEC का 2 टैबलेट, एल्बेंडाजोल 1 टैबलेट और 15 के ऊपर 3 टैबलेट DEC और 1 एल्बेंडाजोल, इस सबको खाना होगा। जैसे हम लोग का यहाँ जो फाइलेरिया ट्रांसमिशन चल रहा, ट्रांसमिशन रद्द किया जाए, यहाँ एलिमिनेशन ड्रग डिजीज़ जो है रोग वो एलिमिनेशन कर सके। ये अभियान क्या एक बार चलेगा या चलता रहेगा? ये तो कुछ दिन से चल रहा है, कई साल से चल रहा है। तो हम लोग पहले जो हुआ है सारे आदमी को खिलाने नहीं सका, इसलिए ट्रांसमिशन रद्द नहीं किया गया। तो इस बार अगर हम लोग सारे आदमी को दे सके, सबको दवाई दे सके, सब दवाई लें तो यही लास्ट होगा, यही बार लास्ट होगा और करना नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग फेल करेंगे, सभी को दवाई देने फेल करें तो फिर से करना पड़ेगा। जी हाँ, जैसा कि सर ने कहा कि अगर हम लोग इस ड्रग को एडमिनिस्टर करने में हम लोग कामयाब नहीं होते हैं तो ये अभियान करते रहना होगा। और उनको उम्मीद है कि इस बार करने के बाद फाइलेरिया को पश्चिम बर्धमान ज़िले से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ आसनसोल टाइम्स के लिए नमस्कार। रानीगंज के बासरा कोलेरी इलाके रविवार को एक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग की दुकान में चोरी हो गई। दुकान के मालिक गणेश ने बताया कि रविवार को उनकी दुकान बंद रहती है। उन्होंने बताया कि उनकी दुकान जहां है उस मकान के मालिक का भी अपना एक कमरा यहाँ है। जब वे अपने कमरे में किसी काम से आए थे तो देखा कि उनकी दुकान का ताला टूटा हुआ है। मकान मालिक ने उनको फोन पर जानकारी दी। गणेश ने बताया कि चोर छत के रास्ते से आए थे। उन्होंने बताया कि तांबे के तार, पंखा, मोटर और सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। उन्होंने बताया कि प्राथमिक रूप से लगता है कि 1 से 1.5 लाख के करीब सामान की चोरी हुई है। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई है। गणेश ने कहा कि चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी है। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। घटना दादा आपका शाम को बड़ी मालिक फ़ोन किया आपका थोड़ी देर पहले कि आप आइए, आपका देखिए दुकान का सब ताला वाला टूटा हुआ। तो आकर देखे तो टोटल आपका दुकान का जितना भी मोटर वोटर तांबा वांबा जितना भी था सब कुछ चोरी हो गया है। दुकान कब बंद किया था? कल आपका शाम 5 बजे। उसके बाद उसके बाद आज नहीं आए। रविवार हम लोग का बंद रहता है। इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिला? इन्फॉर्मेशन वो बड़ी मालिक आए, उनका भी रूम है भीतर में, वो अपना कुछ सामान लेने आए थे। तब वो बोले कि देखिए आप आइए जल्दी, आपका दुकान का सब ताला वाला टूटा हुआ है। तो आकर देखने आए तो क्या देखे आपने? आए तो देखे सब आपका चोरी हुआ हुआ, आपका मोटर फोटर जितना भी है सब काट कूट के आपका राउटर वोटर सब लेके चला गया। तांबा का जितना सामान, टीवी उवी, अंखा पंखा, मोटर सब लेके चला गया है। कितना अमाउंट का था ये सब? देखिए ऐसे तो अंदाज आपका भी कुछ बोल नहीं सकते, जोड़े नहीं है, जोड़ेंगे तो लगभग आपका 1.5 से तो ऊपर ही है। 1.5 रुपया? हाँ, उससे ऊपर ही होगा। 1.5 लाख? 1.5 लाख रुपये का आपका समझ लिए सामान आपका चोरी हुआ। हो सके भी काउंट किए नहीं, उससे ज़्यादा ही हो सकता है। तो आपका यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है जो? हाँ, सीसीटीवी कैमरा था, लेकिन उसका DVR सब काट कूट के आपका बराबर कर दिया है आपका। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी? हाँ, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है, पुलिस आई थी, सीसीटीवी कैमरा का DVR सब लेके गई है। क्या लगता है कि चोर का आने का वजह कहाँ से आएगा? दादा ये हम कैसे बता सकते हैं, हम लोग को कोई आइडिया नहीं दादा। चोर घुसा कहाँ से? छत से आया। छत से आया। क्या नाम हुआ आपका? गणेश भूत।
जगह का नाम हाँ, बासड़ा कोलेरी, क्या चीज़ का दुकान है आपका? इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का है। आज आसनसोल नॉर्थ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और घोषित उप मेयर अभिजीत घटक को सम्मानित किया गया। इस मौके पर आसनसोल नॉर्थ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम पदाधिकारी गण उपस्थित थे। संगठन के अध्यक्ष मनदीप सिंह लाली ने बताया कि पिछले नगर निगम चुनाव के बाद जब नई बोर्ड का गठन हुआ और विधान उपाध्याय मेयर और अमरनाथ चटर्जी चेयरमैन बने, आज संगठन की तरफ से उनको सम्मानित किया गया। उन्होंने आशा जताई कि पिछले बोर्ड के दौरान जिस तरह से आसनसोल के विकास के काम किए गए थे, इस बार भी नई बोर्ड के नेतृत्व में आसनसोल का विकास और आगे बढ़ेगा और लोगों को सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएं मिलेंगी। मौके पर मनदीप सिंह लाली के अलावा मनोज भास्कर, देवशीष सिंह, कपिल देव प्रसाद महतो, ज्वाइंट सेक्रेटरी रंजीत सिंह, राम अवतार अग्रवाल आदि उपस्थित थे। नॉर्थ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूरा टीम के तरफ से मेयर और डिप्टी मेयर को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित करने का आज प्रोग्राम किया है और आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का प्रस्ताव जो है मेयर साहब को हम लोगों ने दिया है। जो भी सहयोग का ज़रूरत पड़ेगा या हम उनको सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी या उनको हमारा सहयोग का जो ज़रूरत पड़ेगा हम उन देने के लिए हम लोग तैयार हैं। मनोज कुमार भास्कर, आसनसोल नॉर्थ चैम्बर ऑफ कॉमर्स सेक्रेटरी। आसनसोल नगर निगम के 43 नंबर वार्ड के पार्षद आमना खातून आज मेयर विधान उपाध्याय से मिली। उन्होंने अपने वार्ड में पानी सहित अन्य समस्याओं की तरफ मेयर का ध्यान आकर्षित किया और इन समस्याओं के जल्द से जल्द निराकरण के लिए उनसे गुहार लगाई। मेयर ने आमना खातून की बातों को गौर से सुना और वार्ड की हर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। जी, मेयर से हम लोग मिलने के लिए आए थे, उनसे इस्तेमाल करने के लिए उनका, और उनसे ये पानी की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उससे सबसे पहले हम सर से बात किए। उनसे बोले कि सर पहले पानी की जो प्रॉब्लम है सर उसे सॉल्व कीजिए सर, और पानी की जो प्रॉब्लम अगर सर भी इस बात की बोले कि इस चीज़ को हम पहले ध्यान में रखेंगे, नज़र में रखेंगे और उसे ज़रूर ठीक करेंगे। आमना खातून 43 वार्ड से काउंसिलर। 12 अप्रैल को आसनसोल लोकसभा के लिए उपचुनाव होंगे। इससे पहले सभी राजनीतिक दलों की तरफ से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज हमारे संवाददाता ने पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष विधान उपाध्याय से आने वाले चुनाव को लेकर बात की तो उन्होंने पूरा विश्वास जताते हुए कहा कि इस बार आसनसोल में नया इतिहास लिखा जाएगा। तृणमूल कांग्रेस इस सीट को जीतने में कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि कल ही इस संदर्भ में एक बैठक हुई थी जहां आसनसोल लोकसभा केंद्र के सभी ब्लॉकों के अध्यक्ष उपस्थित थे। दीवार लेखन का काम भी शुरू हो गया है, प्रचार भी जोरों पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 19 या 20 तारीख तक सभी इलाकों में दीवार लेखन का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में जिन वजहों से टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा था, उन वजहों को चिन्हित किया गया है और उन पर काम किया जा रहा है ताकि आने वाले लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी को यहां से सफलता मिले। उन्होंने पूरा विश्वास जताते हुए कहा कि इस बार एमसी को आसनसोल लोकसभा सीट जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य किए गए हैं उनको देखते हुए जनता का पूरा आशीर्वाद इस बार उसी को मिलेगा। वहीं उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के प्रत्याशी बनने पर खुशी जताते हुए कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा एक कद्दावर नेता है और उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए टीएमसी का हर कर्मी जी तोड़ मेहनत कर रहा है। বিভিন্ন জায়গায় গতকাল রাত্রেবেলা তো সন্ধ্যেবেলাতে আমরা জেলা মিটিং ডেকেছিলাম পুরো কনস্টিটিউয়েন্সি আসানসোল লোকসভা। তাতে সব ব্লক প্রেসিডেন্টরা ছিল, অল উইংস অফ ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট, তাদেরকে ডাকা হয়েছিল। ডেকে তাদেরকে ব্লক ভিত্তিক মিটিং করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং 19-20 তারিখের মধ্যে দেওয়াল লিখন কমপ্লিট হয়েছে। আপনি তো নিজেও দেখা গেল কি দেওয়াল লেখন দিচ্ছিলেন এবং কি বার্তা দিচ্ছেন, মানে অনেক জায়গা কর্মীরা যে জায়গাগুলো সিটে হেরেছে, যে জায়গা আপনাদের এই কর্পোরেশনে ইলেকশনে আপনাদের ক্যান্ডিডেট পিছিয়ে রয়েছে, ওই সব এলাকায় সেই জিনিসগুলো দেখার পর সেই জিনিসগুলো যাতে আগামী দিনে না হয় তার জন্য আমরা ব্যবস্থা করছি। মানে যে কারণে হেরেছিলাম আমরা তো বিচার করেছি কী কারণে হেরেছি, যে কারণে হেরেছি সেটা বিচার করার পর সেটাকে ঠিক করছি। এছাড়াও
নিচু স্তরের কর্মীরা যারা সবচেয়ে বেশি খাটে তাদের জন্য কি বার্তা রয়েছে আর কি? দেখুন, তাদের আমরা সবাই নিচু স্তরে কর্মী, আমরা কেউ নিচু স্তরে নয়। আমাদের নেতা একজন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাই আমরা সবাই যে নিচে আছে, আমার কাছে দায়িত্ব দিয়েছে, আমি এখানে বসে আছি এবং আমিও সেই কর্মী। আমরা সবাই মিলে আবার 20 তারিখে কি 21 তারিখে আমরা একটা মিটিং ডাকছি কর্মী সভা, যেটা পুরো মানে কনস্টিটিউয়েন্সি থাকে। সেখানে পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত মেম্বার, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, জেলা পরিষদ, অল কর্মাধ্যক্ষরা, কাউন্সিলররা, ওয়ার্ড প্রেসিডেন্টরা, অঞ্চল প্রধানরা, ব্লক প্রেসিডেন্টরা, যেখানে যা মানে পার্টিতে যা আছে সমস্ত উইংসের সেম যতগুলো থাকছে সবাইকে নিয়ে আমরা একটা কর্মী সভা করে নেব। তারপর এখন যেটা কাজে নেমে গেছে, তারপর আরও একটু দরকার। আপনাদের ক্যান্ডিডেট আছে শত্রুঘ্ন সিনহা, এর আগে ছিল এখানে লোকসভাতে বাবুল সুপ্রিয় দুবারের ক্যান্ডিডেট। আসানসোলবাসীদের বারবার একটা কথা উঠে আসছে বারবার কি বাইরের ক্যান্ডিডেট দিলে তারা দেখা যায় না, তো কি শত্রুঘ্ন সিনহা এখানে দেখা পাওয়া যাবে না তিনিও এরকম উদাহরণ? না, প্রথমত বলতে মানে কাউকে কাজ করতে হবে, মুখ দেখানোর জন্য তো কেউ নয়, কাজ করতে হবে। অর্থাৎ আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত লেভেল থেকে, কাউন্সিলর লেভেল থেকে, পঞ্চায়েত সমিতি থেকে কর্পোরেশন পর্যন্ত এবং এমএলএ, ঠিক আছে, পুরোটাই যেখানে ডেভেলপমেন্টের যা জায়গাটা রয়েছে সেই জায়গাটা পুরোটাই কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস নিয়ে আছে। এবং সেখানে কারোর মুখ দেখার জন্য নয়, কাজ করার জন্য। এবং আমরা যেভাবে কাজ করি, নেত্রী যেভাবে কাজ করে, আমাদের যে এমপি প্রার্থী হয়েছেন নিশ্চিতভাবে উনিও কাজ করবেন। 12 अप्रैल को होने वाले आसनसोल लोकसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा और टीएमसी दोनों पार्टियों ने ही ताल ठोकना शुरू कर दिया है। भाजपा के जिला सचिव ने कहा कि सल्पांचल में टीएमसी की गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि उनके पास लोकसभा में यहां से बनाने लायक कोई प्रत्याशी नहीं है। यही वजह है कि उनको पटना से एक बिहारी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं है। उनका पूरा विश्वास है कि आसनसोल की जनता इस बार भी आसनसोल लोकसभा सीट पर भाजपा को विजय बनाएगी और भाजपा इस बार 3 लाख से ज्यादा मतों से विजय होगी। उन्होंने कहा कि आसनसोल की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है और उन्होंने टीएमसी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें मादा है तो वे बिना बूथ कैप्चरिंग और आतंक के चुनाव जीत कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि जितेंद्र तिवारी यहाँ पर तथाकथित बंगालियों से ज्यादा बांग्ला सांस्कृतिक को सम्मान देते हैं। यही वजह है कि आसनसोल लोकसभा केंद्र में हर वर्ग, हर समाज के लोग जितेंद्र तिवारी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं और भाजपा को 3 लाख से ज्यादा मतों से विजय मिलेगी। वहीं जब हमने इस संदर्भ में पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष विधान उपाध्याय से बात की तो उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जितेंद्र तिवारी को लेकर लिफलेट जारी करने का आरोप लगाया जा रहा है, सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि जब किसी के पास करने को कुछ नहीं होता तो वे इसी तरह की बेकार की बातें करता है। उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा का नाम घोषित हो जाने के बाद जाने के लिए कमर कसकर मैदान में उतर चुका। नमस्कार। आसानसोले टीएमसी ग्रुपबाजी, लबिबाजी, তোলাবাজির কারণে আজকে শতভাগে বিভক্ত। এজন্য তাদের স্থানীয় কোনো নেতাকে এখানে প্রার্থী না করে সুদূর পাটনা থেকে এক বহিরাগত অভিনেতাকে প্রার্থী করে দেওয়া হয়েছে। এজন্য বিজেপি চিন্তিত নয়। বিজেপি জানে আসানসোল থেকে তারা 3 লক্ষাধিক ভোটে জিতবে। মুশকিল হলো তারা সরাসরি বিজেপির সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াই লড়তে না পেরে আমাদের জননেতা বিশিষ্ট আইনজীবী মাননীয় জিতেন্দ্র তিওয়ারির নামে তারা বাঙালি বিহারি বিদ্বেষমূলক উৎসাহ রটাচ্ছে। অথচ আপনারা সকলেই জানেন তথাকথিত বাঙালির থেকেও অনেক বেশি বাংলা সংস্কৃতির উপর আস্থাশীল আমাদের এই তিওয়ারিজি। আমরা টিএমসিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানাতে চাই, আপনারা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করে বিনা সন্ত্রাস, বিনা ছাপ্পা ভোটে আসানসোল থেকে জিতে দেখান। পারবেন না। আমরা জানি এখানের মানুষ নরেন্দ্র মোদীর ওপর আস্থা রাখেন, বিজেপির ওপর আস্থা রাখেন।
আর আসানসোল থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি 3 লক্ষাধিক ভোটে জিতবে। এটা ভারতীয় জনতা পার্টির চ্যালেঞ্জ, এটা নিবর্তমান মণ্ডল সভাপতি হিসেবে আমার চ্যালেঞ্জ, বর্তমান জেলা সম্পাদক হিসেবে এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ। ভারত মাতা কি জয়। কারোর যদি কাজকর্ম না থাকে তাহলে ওইসব করে, নিজেদের পোস্টারগুলোকে তৃণমূলের নামে চাপানো, এটা আজকের নয়, ওদের বরাবরের স্বভাব আছে। তো সেই স্বভাবটা ছিল আমাদের সাথে এর সাথে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। অলরেডি আমাদের প্রার্থী ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে, আমাদের কর্মীরা সবাই ব্যস্ত এখন দেয়াল লিখন নিয়ে, নিজের প্রচার নিয়ে ব্যস্ত। সেখানে কার কোথায় পোস্টার পড়েছে এই পড়েছে এটা ডিউটি নয়। বলছে জিতেন তিওয়ারি ক্যান্ডিডেট হলে ভয় আছে তৃণমূলের, তার জন্য এই পোস্টার। ওই জন্য পাণ্ডবেশ্বরে জিতে এসছে, ওই জন্য পাণ্ডবেশ্বরে জিতে চলে এসছে, ভয় আছে।